Everyone, today we will discuss further theories about the origin of language. So first of all, we will discuss about the gesture theory or tool making source. So gesture language basically preceded the speech. So human hands and manual gestures are the main precursor of speech. Like human made different kind of movements by their hands, by their eyes, and these shows their gestures, and these are basic tools for the speech production. So brain is not only relative to human body side, but it is also lateralized. Human brain is lateralized in the way that it helpful in the production of speech. So signs and gestures were used by animals, so the human imitated them in the same way. It is said that signs and gesture language, which was first used by the animals, they create certain type of signals if they feel danger, or if they feel some kind of joy. They create certain kinds of signs or gestures, and so the human body imitate or copy these kind of different kind of gestures, and so the language production is due to these kinds of signs or gestures. Like if we talk about the sign language, which was earlier used by the red Indians of North America. So this was the system of gestures which was used for a negotiation between tribes that spoke different languages. So the different tribes used different kinds of signs because they don't have the proper language at first. So they use different kind of gestures in order to communicate or speak with each other. So the language developed from these kinds of gestures, as the first people were not able to speak their language, so they use different kind of sounds, different kinds of signs, different kinds of signals which they gave each other in order to communicate. So the language is first developed or originated from these kinds of sign language. So speech and gestures are closely related as their center is located in the brain. So it is said that hand movement center is found in the brain, and the same like the hand movement, vocal organs which are helpful in speech productions, larynx or any kind of vocal organs found in human which are involved in speech production, their connection is found in the center of the brain. So the in the brain, the vocal organ and the hand movement have the same center, so they are closely related with each other. It means that gesture is closely related with the speech production. So speech production and gesture are closely related, are interlinked with each other. So speech and gestures grew up together. It means that speech production occur with the development of जेस्चर्स के, कि जिस तरह से जेस्चर जो है वो हमारे पास साइन लैंग्वेज जेस्चर जो थे वो हमारे पास आए, उसके साथ साथ हमारे पास स्पीच प्रोडक्शन होती गई, तो ये इकट्ठे ग्रीव अप करते हैं. तो चिंपैंजीज या मंकीज़ जो होते हैं वो स्पेशल सिग्नल देते हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हैंड से, हैंड मूवमेंट के ज़रिए, जब वॉइसेस या नॉइजेस क्रिएट करते हैं उसके ज़रिए. तो इन द सेम वे ह्यूमन जो अर्ली ह्यूमन था उसने भी इनको इमिटेट करना शुरू कर दिया, कॉपी करना शुरू कर दिया अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वॉइसेस और नॉइजेस के ज़रिए, या अपनी बॉडी को मूव करने के ज़रिए अपने सिग्नल देना शुरू कर दिए. तो वहाँ से लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई. तो जेस्चर थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि टूल मेकिंग सोर्स मीन्स के हमारे पास जेस्चर्स यानी हैंड मूवमेंट और डिफरेंट काइंड ऑफ जेस्चर यानी नॉइजेज, साउंड्स या हैंड मूवमेंट या मैनुअल जेस्चर जो होते हैं वो हमारे पास टूल हैं. एक टूल क्या है हमारे पास? लैंग्वेज प्रोडक्शन का टूल है. वहाँ से स्पीच प्रोडक्शन हुई है, जेस्चर या साइन लैंग्वेज जो है वहाँ से लैंग्वेज की प्रोडक्शन हुई है. तो अनदर थ्योरी इज़ अबाउट द म्यूज़िकल थ्योरी विच वाज फर्स्ट गिवन बाय ऑटो जेपर्सन, जो एक डेनिश लैंग्विस्ट था. इस थ्योरी के मुताबिक जो लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है वो सॉन्ग्स के ज़रिए हुई है. सॉन्ग्स मीन्स के लॉन्ग स्पीचेस जो होती थी, सॉन्ग्स की वे में जो होती है, सॉन्ग से इमर्ज होती हैं, तो वो लॉन्ग स्पीचेस जिनके दरमियान कोई इंटरवल नहीं होता था, टोन या पिच उनकी हाई भी हो जाती थी, उनके दरमियान वो कोई ब्रेकिंग साउंड नहीं थी, लाइक उनके दरमियान कोई फुल स्टॉप कुछ नहीं होता था, बल्कि वो एक लॉन्ग वॉइसेस की फॉर्म में, लॉन्ग नॉइजेस की फॉर्म में अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो एनिमल्स या ह्यूमन जो है वो क्रिएट करते थे नॉइज़ या वॉइसेस. तो एक लंबी आवाज़ें होती थी जो म्यूज़िकल फॉर्म में होती थी. तो वहाँ से क्या हुआ है, लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है. तो लैंग्वेज वाज अ काइंड ऑफ सॉन्ग विदाउट वर्ड्स, इट वाज नॉट कम्युनिकेटेड बट मेयरली एक्सप्रेसिव. तो इसमें कहा जाता है कि लैंग्वेज जो है एक काइंड ऑफ सॉन्ग है
जो वर्ड्स के बगैर मतलब इस तरह कम्युनिकेशन नहीं होता था, वर्ड्स के बगैर होती थी, लेकिन इसमें क्या किया जाता था, एक दूसरे के साथ साउंड होती थी या नॉइज़ होता था, क्रिएट हो जाता था और उसको एक्सप्रेस किया जाता था अपनी फीलिंग्स को। तो फीलिंग्स को जब एक्सप्रेस किया गया वॉइसेस या नॉइजेस की फॉर्म में विदाउट एनी वर्ड, जब सिर्फ आवाज़ें होती थी तो वो निकालते थे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से, तो वहाँ से लैंग्वेज क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुई है। इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है, जैसे एक ट्रेजेडी ऑफ गोट, इसकी एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम माया एंजेलो का वर्क देखें तो एक है आई नो बट द केज्ड बर्ड सिंग्स। तो ये अगर देखें ये सॉन्ग, तो यहाँ से भी हमें एग्जांपल मिलती है कि किस तरह ये टाइटल जो है जॉ ब्रेकिंग है, किस तरह से लॉन्ग टाइटल है इसका। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इस टाइटल में केज बर्ड सिंग्स, मतलब बर्ड जो है वो अगर आज़ाद परिंदे की बजाय एक कैद परिंदा जो होता है वो अपनी ट्रेजेडी को, अपनी फीलिंग्स को किस तरह से एक्सप्रेस करता है दर्द भरी आवाज़ की फॉर्म में। तो ये कहते हैं, ये तो हम लिटरेचर से एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन इसी तरह कहते हैं कि लैंग्वेज जो ओरिजिनेट हुई है यहाँ इन वॉइसेस से हुई है, नॉइजेस से हुई है जो म्यूज़िकल वे में थे। तो ये म्यूज़िकल थ्योरी बेसिकली इसको वो करवाती है, इंट्रोड्यूस करवाती है। तो अर्लीस्ट रिकग्निशन जो लैंग्वेज को मिली है वो वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स बट इमोशंस। तो वो फैक्चुअल बेस्ड नहीं थी, वो तो इमोशन बेस्ड थी, बिकॉज इमोशन जो है वो हमेशा म्यूज़िकल फॉर्म में या साउंड्स की फॉर्म में आउटबर्स्ट होते हैं, बाहर आते हैं। हमेशा बाहर जब इमोशंस निकालते हैं तो वो साउंड्स की फॉर्म में, नॉइज़ की फॉर्म में आते हैं या म्यूज़िकल फॉर्म में आते हैं। तो वहाँ से लैंग्वेज जो है वहाँ से लैंग्वेज प्रोडक्शन हुई है एज़ कम्पेयर टू द फैक्ट्स से लैंग्वेज नहीं हुई प्रोडक्शन। तो ये बेसिकली हमें म्यूज़िकल थ्योरी बताती है कि साउंड प्रोडक्शन, लैंग्वेज प्रोडक्शन जो है वो साउंड से, नॉइजेस से जो फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता था म्यूज़िकल वे में, म्यूज़िकल फॉर्म्स में, जिनमें कोई फुल स्टॉप नहीं होता था, टोन, पिच, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता था, क्योंकि मेयरली एक्सप्रेस करना होता था चीज़ों को एज़ कम्पेयर टू कम्युनिकेशन, जहाँ हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करते हैं कि इंटरवल का ख्याल रखा जाए, फुल स्टॉप हो कम्युनिकेशन के दौरान, हमारे लॉन्ग सेंटेंसेस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। वो उस वक्त नहीं था। वो तब क्या होता था कि सिर्फ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इंसान के पास वर्ड्स नहीं थे, तो वो वॉइसेस, नॉइजेस क्रिएट करता था लॉन्ग वो म्यूज़िकल फॉर्म में। तो उनकी फॉर्म, म्यूज़िकल फॉर्म में जो है हमारे पास वहाँ से लैंग्वेज प्रोडक्शन हुई है। इसके अलावा हमारे पास है जो ही हो थ्योरी, इसको कहते हैं द सोशल इंटरेक्शन सोर्स। जो ही हो थ्योरी से आपको पता चल रहा होगा, नेम से ही पता चल रहा होगा कि नॉइजेस क्रिएट किया जाता था या सोशल इंटरेक्शन होता था लोगों के दरमियान। तो ये थ्योरी नॉयरे ने 19th सेंचुरी में दी थी। तो लैंग्वेज एराइज होती है, क्या कहते हैं कि नॉइजेस के ज़रिए जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो कोई एफर्ट करते थे इकट्ठे मिलकर, या कोई लेबर कोई काम करते थे, तो वहाँ से क्या होता था, नॉइज़ क्रिएट होता था। जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, एफर्ट करते हैं, कोई भारी काम करते हैं, मिलकर करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, कोई शोर शराबा उठता है। तो वहाँ से क्या हुई है, लैंग्वेज वहाँ से डेवलप हुई है, वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। इसमें एग्जांपल हैं, वहाँ से आपको बेहतर समझ आएगी। मूविंग अ ट्री ट्रंक और लिफ्टिंग अ रॉक, लाइक अगर एक तन्ने को, दरख्त के तन्ने को काटा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह हिलाया जाता, रखा जाता, तो उससे भी इकट्ठे लोग मिलकर काम करते थे, एफर्ट होती थी, तो वहाँ से भी नॉइज़ क्रिएट होता था, तो वहाँ से लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई। या फिर वो कहते हैं कि एक रॉक उठानी होती थी, भारी भरकम पत्थर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होते थे, तो वहाँ से क्या होता था, हमारे पास वहाँ से भी नॉइज़ क्रिएट होता था। लोग एक दूसरे को लान तान करते थे, घुराते थे एक दूसरे के ऊपर या कुछ भी, तो वो भारी काम करते हुए जो भी साउंड निकालते थे या एक दूसरे के साथ लड़ जाते थे। तो ये इन वहाँ से क्या आएगा, लैंग्वेज डेवलप हुई, ओरिजिनेट हुई। इसमें कहते हैं फिजिकल एफर्ट्स एंड इंटरेक्शन हैड टू बी कोऑर्डिनेटेड। इसमें कहते हैं कि फिजिकल इंटरेक्शन होता था आपस में, एंड इसके अलावा हमारे पास फिजिकली एफर्ट्स होती थी। तो इससे क्या होता था, एक दूसरे के साथ मिल के, कोऑर्डिनेटेड मीन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता था, एक दूसरे के साथ के ग्रुपिंग में क्या होता था, फिजिकल एफर्ट्स की जाती थी, फिजिकली कोई काम किया जाता था या इंटरेक्शन होता था आपस में ह्यूमंस का, तो वहाँ से आवाज़ें निकलती थी और वहाँ से लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है। इसलिए इसको द सोशल इंटरेक्शन सोर्स भी कहते हैं। सोशल इंटरेक्शन मतलब सोशली हम एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में, गैदरिंग में, तो वो जब काम करते वक्त एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे तो वहाँ से आवाज़ें निकलती थी। तो इसमें हम्स, ग्रंट्स, ग्रोन्स, कर्सेस, लान तान, गुराना और ये सारी ग्रंट्स और जितनी भी आवाज़ें होती थी वो निकलती थी। तो जो ही हो थ्योरी बेसिकली आवाज़ को ही ज़ाहिर कर रही है कि किस तरह से डिफरेंट आवाज़ें निकलती हैं। तो वहाँ से लैंग्वेज जो है फिज़िकल एफर्ट के दौरान जब वो कोई काम करते थे